بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹی، خاک، ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنا دیا۔ 40 برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جا۔ روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی، پھیکڑے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پیوست میں بدلتا گیا، اور جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہی زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آدم علیہ السلام کو عزت کے تخت پر بٹھایا۔ سننے میں آیا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے بنا کر خلافت کی مسند پر بٹھائے گا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور اپنی رحمت سے انہیں کچھ نام سکھا دیے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان ناموں کے متعلق پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب سے عاجز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پاک ہے تو، اور ہمیں صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفے باندھے اور مؤدب کھڑے تھے کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
सजदा करो। और फरिश्तों ने फौरन सजदा कर दिया, मगर इब्लीस शैतान ने इनकार किया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि मुझे तुमने आग से बनाया है और आदम को मट्टी से। इस नाफरमानी से शैतान अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम आजादी से वहशत में रहने लगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की और किसी महरम के बारे में सोचा, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जब आदम सो रहे थे तो उनके पहलू में हवा को पैदा कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक पाकबाज औरत को पास बैठे देखा, तो पूछा कि तू कौन है? तब हजरत हवा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी पसली से पैदा किया है। अल्लाह ने हजरत हवा को इतना हसीन बनाया था कि अगर तमाम आलम की खूबी 100 हिस्से करे तो 90 हिस्से हवा को मिले और 10 हिस्से बाकी आलम को मिले। इस पर आदम ने अल्लाह ताला के हजूर सजदाए शुक्र अदा किया। अल्लाह ने आदम और हवा को फरमाया कि जन्नत में जहां चाहे रहें और जो मर्जी खाएं, मगर घिऊ के दरख्त से कुछ मत खाना। दूसरी तरफ इब्लीस अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था और हसद की आग में जल रहा था और किसी मौके की तलाश में था कि कैसे आदम और हवा को अल्लाह की नाफरमानी पर राजी करे। इब्लीस ने सबसे पहले ताऊस से दोस्ती की और उससे दरख्वास्त की कि दोस्ती का हक है कि वो उसे किसी तरह वहशत में पहुंचा दे ताकि वो आदम और हवा से अपना बदला ले सके। ताऊस ने इस बात से इनकार किया और कहा कि वो सांप से बात करे तो हो सकता है वो उसकी मदद करे। तब इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब के मंत्र से फरेफ्ता कर दिया और सांप इब्लीस को अपने मुंह में डालकर वहशत के अंदर ले गया और वहशत के निगहबान को उसके मुतल्लिक खबर ना हुई। इब्लीस हजरत आदम और हवा के पास वहशत में गया और रोना शुरू कर दिया। आदम और हवा ने शैतान को बिल्कुल नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोता है। तब शैतान ने उन्हें खबरदार किया कि ये वहशत की सारी नेमतें उनसे छिन जाएंगी और वो मर जाएंगे। इस बात पर आदम और हवा दोनों गमज़दा हुए। तब शैतान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताता हूं कि जिसका मेवा खाने से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आदम के पूछने पर शैतान ने उसी दरख्त के पास ले गया जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें मना किया था, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने इसे खाने से इनकार किया और कहा कि वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मगर आदम वहां से उठकर चले गए।
शैतान हजरत हवा के पास गया और इसी तरह उनके दिल में वसवसा डाला और शैतान के कहने पर सांप ने शैतान की सच्चाई की गवाही दी। तो हजरत हवा आदम के पास तशरीफ लाई और अर्ज की कि सांप तो वहशत का खादम है और वो भी इब्लीस के हक में गवाही दे रहा है, इसलिए मैं पहले इस दरख्त का फल खाती हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो आप अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफी मांगना और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप भी खा लेना और फिर हम सारी जिंदगी चैन से जन्नत के मेवे खाएंगे और मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इस तरह आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर वो ममनुआ खाना खा लिया जिसे अल्लाह ने इन्हें मना किया था। खाने के बाद दोनों के सत्तर एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए और वो पत्तों से अपना जिस्म छुपाने लगे और अल्लाह ताला इस बात पर नाराज हुए और उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। बाद में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को माफी की दुआ सिखाई और माफी मांगने पर उन्हें माफ कर दिया और एक अरसे तक उन्हें जमीन में रहने का हुक्म दिया ताकि उन्हें मजीद आजमाया जा सके और बाद में उनकी औलाद में से जो अच्छे हों उन्हें उनके आबाई घर जन्नत में वापस ले जाया जाए और जो गुनाहगार हों उन्हें जहन्नम में डाला जाए। हम सबको अच्छे काम करने चाहिए और शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि शैतान हमारा असली दुश्मन है और उसने हमारे माँ बाप यानी आदम और हवा को जन्नत से निकलवा दिया था और वो हमें भी जन्नत में जाने नहीं देगा मगर हम अल्लाह के अहकाम पर चलकर और अल्लाह की खास रहमत से इंशाअल्लाह जन्नत में जरूर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह।